Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter what is government, and under this chapter we have done what do we mean by government. Then we have done different levels of the government. That is the government is there at the central level, then the government is there at the state level, and the last level is the local level. And then we have also discussed about the different types of government, like there is democratic government and monarchical government. These are the two main types of government about which we have discussed, and we have also seen how they are different from each other. And now we will be discussing in detail about the democratic government. And in the previous class we have seen that in a democracy, election is the most important event. It is only through election that a democracy becomes functional. Because we know that it is not possible for the people to take participation in the activities of the government directly, because such a large population is there. If each and every individual is supposed to take decisions of the government, then there will be only mess and chaos. So it is what is done, that we have adopted this system that the people will elect their representative through elections, and this is called representative government, representative democracy, in which the people do not rule directly, but the people rule indirectly. How the people rule? The people rule through their representatives. These representatives are elected by the people for a fixed period, and then the representatives of the people use the power of the people on their behalf. So this is called a representative government, representative democracy. And in this representative democracy, we find that it is very much important that that इलेक्शंस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में. अब इलेक्शंस में क्या इम्पॉर्टेंट होता है? राइट टू वोट. There cannot be representative democracy in the absence of election, because only through elections people are electing their representatives, and there cannot be we can say proper election or meaningful election if the people are not having the right to vote. So these all are related to this election. ठीक है. राइट टू वोट इलेक्शन में राइट टू वोट यूज़ होता है, और इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो फंक्शनल होती है. ओके. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास दैट it was not easy for the people of any country to achieve this right to vote equally. For that purpose, people of different countries had to fight a long battle in order to achieve this right to vote without any discrimination. Like first of all, it was what was done that when democracy started, when in European countries democracy started, what was done that only the male members, and in the male members also those who have some property, there was criteria of property. So male members of the society, then those who have a certain limit of property,
they were also only given this right to vote, है ना. All the citizens of the country were not given right to vote. Only few male members with property. प्रॉपर्टी का एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया था. जैसे अगर हम फ्रांस को देखें जहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन है वो. यू विल रीड अबाउट ऑल दीज इन द इन एडवांस क्लासेस, है ना. सो डेमोक्रेसी को लाने के लिए लोगों को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है, ठीक है. राइट टू वोट को अचीव करने के लिए लोगों को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी. तो पहले ये बहुत कम लोगों को मिलता था, जैसे सिर्फ मेल मेंबर्स को मिल रहा है, जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको मिल रहा है. लेकिन फिर ग्रेजुअली जब लोगों का जो जिसको हम कहेंगे कि जो फाइट था वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया. पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग दैट दे मस्ट बी गिवन दिस राइट टू वोट. इसके लिए जो सारे मेल मेंबर्स को मिलना चाहिए, सारे मेल सिटीजन्स को मिलना चाहिए. उसके लिए पहले एफर्ट्स हुए, लड़ाइयाँ हुई. तो जो मेल मेंबर्स थे उनको मिल गया, है ना. जो भी जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जारी रहा, कंटिन्यू रहा, बट मेल मेंबर्स को मिल गया. फिर औरतों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी लंबी लड़ाई हुई, तब जा कर के जो औरतें थी उनको मिला. इसके लिए इसके पीछे जो स्टोरी है उसको अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यूएस और यूके जैसे कंट्रीज़ जो कि इतने एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में भी वुमेन को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी अपने राइट टू वोट को अचीव करने के लिए. किसी भी कंट्री में अगर हम देखें तो कोई भी कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग हुई थ्रू रेवोल्यूशन, थ्रू चेंजेस, जहाँ पर डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ, वहाँ कहीं भी राइट टू वोट विलिंगली गवर्नमेंट ने नहीं दिया. गवर्नमेंट नेवर, मतलब जो भी जिनके भी हाथ में पावर होता है वो क्या चाहते हैं कि पावर जो है वो स्प्रेड ना हो, वो थोड़े से ही लोगों के बीच में रहे, तभी वो उसको ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, है ना. तो जिनके भी हाथ में पावर था वो नहीं चाहते थे कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना. बिकॉज क्या है, व्हाट इज़ राइट टू वोट? राइट टू वोट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट बिकॉज दिस राइट इज़ गिविंग यू अ पावर टू चूज़ योर गवर्नमेंट, है ना. तो जिसके भी हाथ में पावर रहा उसने यही कोशिश की कि इस राइट टू वोट को लिमिट करके रखा जाए. कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं हमें मिलती है जो कि विलिंगली जिसने सबको राइट टू वोट दे दिया हो. सो अगर हम यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, तो इन सब कंट्री में जो पुअर थे, है ना, जो पुअर थे, देन वुमेन थी, उन सबको स्ट्रगल करना पड़ा इस राइट टू वोट को अचीव करने के लिए, ठीक है. जो मेल मेंबर्स थे, मेल सिटीजन्स, प्लस प्रॉपर्टी सिटीजन्स, है ना. जो मेल है और जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको मिल गया राइट टू वोट. लेकिन जो पुअर है ना, यहाँ पर जब प्रॉपर्टी आ गया तो इन लोगों को तो राइट टू वोट मिल गया, है ना, जो प्रॉपर्टी वाले मेल मेंबर्स थे. बट व्हाट अबाउट द पुअर्स एंड द वुमेन? सो जिनको नहीं मिला वो कौन है? वो पुअर है एंड वुमेन, ठीक है. पुअर पीपल वर देयर who were not given this right to vote, and then women were there who were not given this right to vote, है ना. तो इन लोगों ने, दोनों ने ही, पुअर पीपल, जो पुअर मेल मेंबर्स हैं, एंड देन वुमेन, दोनों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और तब जाकर के उन्हें राइट टू वोट मिला. जैसे कि अगर हम पर्टिकुलरली इफ वी फोकस ऑन दिस राइट टू वोट ऑफ द वुमेन, देन व्हाट वी फाइंड कि when फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अकर्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम यू नो कब स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था. दिस इज द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है. ओके, तो 1914 से 18 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ड्यूरिंग द वॉर व्हाट हैपेंड दैट for the purpose of war
many men were away, they were fighting on the war front, है ना. So when the men were not in the country, they were far away, they were fighting as the frontline warriors. So in that situation, what happened, that women were called upon to do work that was earlier considered to be the men's work, because men were not there, है ना. तो यहाँ कौन रह गया? अगर हम जैसे सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस एंड यूके, ठीक है, यूएस एंड यूके दोनों ही जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ साथ लड़ रहे हैं. अमेरिका और ब्रिटेन, दे बोथ वर फाइटिंग टुगेदर, है ना, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो जब वो लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उनके जो सोसाइटी थी, उनकी जो कंट्री थी, वहाँ से मेल मेंबर्स गए हुए थे लड़ाई लड़ने के लिए. अब बच गया कौन? फीमेल मेंबर्स बच गई कंट्री में. तो जब सिर्फ फीमेल मेंबर्स, मोस्टली, नॉट ओनली बट मोस्टली वर ओनली फीमेल मेंबर्स, तो ज़्यादातर फीमेल मेंबर्स ही बची हुई थी. तो अब जो सिचुएशन कंट्री के अंदर था वो ये था कि फीमेल्स को वो काम कर रही थी जो काम पहले ऐसा माना जाता था कि मेल ही कर सकते हैं. फीमेल्स वर कंसिडर्ड टू बी less capable, they were considered to be less efficient. So there were many work which were considered to be done only by the male members. But when during the war this situation arose, when the male members were away from their country, and there was only female members in the country, so what happened, that the women, they started to do those works which were earlier considered to be the men's work, है ना. And now they were managing different kinds of work. Now it started to be understood that the women are not less efficient or less capable, because the women were doing their work very efficiently. The work which was earlier done by the male members, now the women are doing those works and they were doing very efficiently. So it was understood that women are not less efficient or less capable. It is only a kind of stereotype. You have read about stereotype, है ना. In the second chapter you have read about stereotype. Stereotype, what is this? A stereotype is to create a kind of image for a particular group of people without any reason, है ना. बिना किसी रीज़न के हम किसी के लिए एक इमेज क्रिएट कर देते हैं और हमें लगता है कि उसको उस इमेज में ही रहना चाहिए. सोसाइटी हमें जब भी हम सिविक्स में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर सोसाइटी. द इमेज इज़ क्रिएटेड बाय द सोसाइटी एंड द सोसाइटी इज़ ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट वॉट एवर इमेज इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय द सोसाइटी फॉर एनी पर्टिकुलर ग्रुप, all the members should act according to that image. And if any member is deviating from that image, if any member is not following that image, then that member will be considered as इसको ये माना जाएगा कि नहीं वो गलत है. He will be considered as wrong because he is not doing according to the image which is created by the society. This is a stereotype. तो ऐसा ही stereotype जो है वो जो फीमेल मेंबर्स हैं, जो वुमेन हैं, उनके अगेंस्ट एक इमेज क्रिएट किया गया था कि वुमेन आर लेस efficient, women are less capable, so they should remain inside the house. They should not be given, they should not be assigned to do those works in which high level of thinking or intelligence is required. And that is the reason why do you think that this right to vote was not given to women? Because it was considered that right to vote is a very important vote. Actually you are taking a decision ना to whom you want to give your vote, है ना.
किसको आप चाहते हैं कि आपका रिप्रेजेंटेटिव बने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न है एंड इट वाज द ओपिनियन ऑफ द सोसाइटी एट दैट टाइम दैट द वुमेन are not capable of taking decisions, they will not be able to take their own decisions, so there is no utility of giving them right to vote। जब वो अपना डिसीज़न ले ही नहीं पाएंगी, वो तो जो मेल मेंबर का डिसीज़न होगा, जो जैसे अगर एक वुमेन है, एक वाइफ है, तो वो वही डिसीज़न लेगी जो कि उसके हस्बैंड ने लिया है। अगर एक डॉटर है तो वो वही डिसीज़न लेगी जो उसके फादर ने लिया है। सी बिकॉज सी इज़ नॉट केपेबल, इट वॉज कंसिडर्ड बाय द सोसाइटी दैट सी इज़ नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग हर ओन डिसीजन, सो देर इज़ नो यूटिलिटी इन गिविंग हर दिस राइट टू वोट, है ना। ये सोच थी। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं दिया गया, ये सोच के कि वो लेस केपेबल है, लेस एफिशिएंट है, दे आर नॉट एबल टू टेक देयर ओन डिसीजन, सो देयर इज़ नो यूटिलिटी ऑफ गिविंग देम राइट टू वोट। तो इस चीज़ को गलत प्रूव कर दिया औरतों ने। कब? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। कैसे? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो सारे जो मेल मेंबर्स थे वो तो वहाँ थे ही नहीं कंट्री में, वो बाहर गए हुए थे, लड़ने के लिए गए हुए थे, है ना, वॉर फ्रंट पे लड़ रहे थे। तो अब यहाँ औरतों ने क्या किया, पूरा का पूरा काम संभाला। जो काम पहले मेल किया करते थे अब वो सारा काम फीमेल कर रही है ना। तो अब ये समझ में आ गया कि ये जो 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 सोच है कि वुमेन आर लेस कैपेबल एंड लेस एफिशिएंट, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ये पूरी तरह से एक गलत सोच है। और इसी वजह से इसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ड्यूरिंग दिस वॉर ओनली इट वाज द डिमांड फॉर सफरेज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अब औरतें ये समझ गई कि वो लेस कैपेबल नहीं है। ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया गया है सोसाइटी की तरफ से, जिसका के पीछे कोई रीज़न नहीं है ना। हम इक्वल हैं, वी आर इक्वली केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। इट वाज अंडरस्टूड बाय वुमेन। उनको ये समझ में आने लगा, और सिर्फ वुमेन ही नहीं, उनके सपोर्ट में पूरे और भी लोग थे। मेल मेंबर्स वर आल्सो देयर, अदर ऑर्गेनाइजेशंस वर आल्सो देयर। सो नाउ इट वाज कंसिडर्ड दैट now it was proved that women are equally capable of making decisions. So now we see that there was this suffragette demand. The women started demanding that they must be given right to vote, है ना। And in this way we see that this fight of women was on a very large scale, बहुत large scale पे ये उनकी लड़ाई चल रही थी। उनके साथ काफ़ी सप्रेस करने का मतलब उनकी जो लड़ाई थी उसको बंद करने का, उसको दबाने का बहुत सारे एफर्ट्स किए गए। So what happened that so many women were imprisoned, and they also went on hunger strike. They had to be fed by forcefully उनको फीड किया जाता था कि अगर हंगर स्ट्राइक पे रहेंगी और काफ़ी दिनों तक अगर उनको खाना नहीं मिले तो फिर उनकी डेथ हो जाएगी, फिर वो एक और बड़ा इशू बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से औरतों ने अपनी लड़ाई लड़ी और तब जा कर के उनको ये राइट टू वोट मिला। यू विल बी वंडर्ड टू नो दैट अमेरिकन वुमेन गॉट दिस राइट टू वोट इन 1920। यूएस में औरतों को राइट टू वोट कब मिला? 1920 में मिला। और यूके में ये राइट टू वोट कब मिला? यूके में अगर हम देखें तो दिस राइट टू वोट वॉज अचीव्ड इन द ईयर 1927। और ओके, इट वॉज 1928। तो ये क्या है? Now you just compare this situation with the situation which is prevailing in India. In our country, what happened? We were under the British rule, है ना, और the British rule was highly exploitative, highly oppressive, and under this British rule, we found that we need to be free of this British rule, है ना। हमें इस ब्रिटिश रूल से फ्री होना था, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वांटेड टू हैव डेमोक्रेसी इन आवर फ्री कंट्री। जब when we will become independent of this British rule, in that situation, in that independent country, there should be democracy. So our fight was
not only against the British rule, but our fight was also to establish democracy in the independent India. So this is the reason why we find that when our constitution was being written down, what happened that our constitution makers gave all of us this right to vote without any discrimination. Okay, and this is what is known as universal adult franchise. So now we will focus on this. So this is universal adult suffrage. It means that everyone, every citizen of the country has this right to vote. The only criteria is of age. As I told you in the previous class also, that in our original constitution this age criteria was fixed at 21. But later on some changes were done in the Indian constitution, and now it is 18. If someone is equal to the 18 years of age or above the 18 years of age, then he or she will be given this right to vote, and this is what we call universal adult suffrage. So you must keep in mind that ये जो adult suffrage हमें मिला है, ये इतनी आसान चीज़ नहीं है ना. कई सारे कंट्रीज़ में हमने देखा कि US और UK जैसे कंट्रीज़ में भी इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी. हमने भी उसके लिए लड़ाई लड़ी. हमारा जो लड़ाई था वो दोनों साथ साथ था. एक तरफ हम ब्रिटिश रूल को भी ख़त्म करने के लिए लड़ रहे थे, और साथ ही साथ हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए भी लड़ रहे थे. हम राइट टू वोट के लिए भी लड़ रहे थे. तो हम सब ने इसको बहुत मेहनत से पाया है. तो हमें क्या करना होगा? वी मस्ट यूज़ आर राइट टू वोट. मैनी टाइम्स क्या होता है, लोग अपने इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करते हैं. इलेक्शंस वाले दिन वो नहीं जाते हैं इलेक्शन बूथ पे अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करने के. ऐसा नहीं करना चाहिए. वी मस्ट यूज़ देम, है ना. इतनी मेहनत से जिस अधिकार को हमने पाया है, जिस अधिकार को पाने के लिए हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, आज जब वो अधिकार हमें मिल गया है तो हमें फिर उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, है ना. ये बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट राइट है. यही डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल और रियल बनाता है. दिस रिगार्ड वी मस्ट pay attention on what Gandhi ji wrote in the Journal of Young India in 1931. यंग इंडिया जो एक जर्नल निकलता था, उसमें महात्मा गांधी ने जो अपने व्यूज़ लिखे regarding this universal adult franchise, that is very important to understand, and the year was 1931. Okay, so what we see, what Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote. है ना. गांधी जी का ये कहना है कि इसके पीछे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा आइडिया है जिसमें आप एक वैसे इंसान को जिसके पास वेल्थ है उसको तो राइट टू वोट देते हैं, लेकिन वैसे इंसान को जिसके पास वेल्थ नहीं है या जिसके पास लिटरेसी भी नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो उसके पास पैसा नहीं है, बट अगर उसके पास कैरेक्टर है फिर भी उसको राइट टू वोट नहीं दिया गया है ना. तो गांधी जी के लिए ये सिचुएशन वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि सिर्फ वेल्थ के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप किसी को राइट टू वोट दे रहे हैं और प्रॉपर्टी नहीं होने के कारण आप किसी को राइट टू वोट नहीं दे रहे हैं, है ना. तो प्रॉपर्टी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया. अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है और कैरेक्टर नहीं है तो भी उसको राइट टू वोट मिला है, और किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है बट उसके पास कैरेक्टर है फिर भी उसको राइट टू वोट नहीं मिला है, तो ये सही क्राइटेरिया नहीं है ना. So Gandhiji is of the opinion that he is saying that I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote
or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man? Isn't it? A man who is working honestly and who is doing whole day, he is doing this physical labor, and because of this physical labor he is sweating out, है ना, और उसकी पूरी जो ब्रो हैं उससे पसीने निकल रहे हैं, वो इतना मेहनत करता है, इतने ऑनेस्टली वो अपना काम कर रहा है, बट he is not having this right to vote. Why? Because he has done a crime. What is the crime? The crime of being a poor man, है ना. It's not a crime to be a poor man. अगर हम पुअर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोई क्राइम किया है ना. तो इस बेसिस पे हमें राइट टू वोट नहीं मिलना बिल्कुल भी गलत है. तो ये महात्मा गांधी ने ये व्यूज़ को रखा, और इसी सब बातों को मानते हुए हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें हमने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को जगह दी. उनका ये कहना था कि हमें सभी को राइट टू वोट देना है, इसमें हमें किसी भी तरह का कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना. सो दिस इज योर चैप्टर completed, and now you will see that some exercise is given at the end of the chapter, and in this exercise you will see what is given. There are different types of functions of the government, है ना, and you have to identify that particular type of function is done at what level, at the local level, state level or central level. Okay, so this is your exercise. So what is the first function? The first function is the decision of the government of India to maintain peaceful relations with Russia. रसिया के साथ पीसफुल रिलेशन लेने का डिसीज़न कौन लेगा? लोकल लेवल की गवर्नमेंट लेगी, या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट लेगी, या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट लेगी? दिस डिसीजन इज अबाउट द रिलेशनशिप विथ अ फॉरेन कंट्री. सो दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ द सेकेंड इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल on whether to have board exams in class 8 for all government schools. Now the decision is about the people of the West Bengal, the student of the West Bengal, and what is it's about for the conducting of a board examination in class 8 for all government school. गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 8 में ही बोर्ड एग्ज़ाम करा दिया जाए या नहीं, इस बारे में अगर वेस्ट बंगाल को डिसीज़न लेना है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को डिसीज़न लेना है, तो ये कौन से लेवल की गवर्नमेंट होगी? ये सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की डिसीज़न नहीं होगी, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू ओनली वन स्टेट ऑफ द कंट्री, दैट इज़ वेस्ट बंगाल. सो दिस डिसीजन विल बी टेकन एट द स्टेट लेवल. Okay, now third, introduction of two new trains between Dibrugarh and Kanyakumari. Now see that the two new trains are to be started from Dibrugarh, that is in Assam, and to Kanyakumari. अब कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के बीच में ट्रेन स्टार्ट करना है. तो इसमें क्या है, मोर देन 2 स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन दिस, है ना, रेलवे का एक नया ट्रेन स्टार्ट करना. दिस डिसीजन कैन ओनली बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इससे पूरी की पूरी कंट्री इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, है ना. So this decision will be taken by the central government, है ना. And then next is fourth, the decision to locate a common well in a particular area of the village. किसी भी विलेज का जो एक एरिया है वहाँ पर कॉमन वेल डिग करना है. तो अब इस बारे में डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट? नो. सेंट्रल गवर्नमेंट विलेज के बारे में डिसीजन लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं है ना. स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं लेगी. इसका डिसीजन लोकल लेवल की गवर्नमेंट, जैसे गांव में जो ग्राम पंचायत होते हैं, दे विल टेक डिसीजंस रिगार्डिंग दिस, है ना. तो दिस इज द डिसीजन टेकन बाय द लोकल गवर्नमेंट. And now the next one is decision to construct a big children's park in Patna. अब पटना में एक बहुत बड़ा चिल्ड्रन पार्क बनाना है. तो ये जो चिल्ड्रन पार्क बनाना है पटना में, इसका भी डिसीज़न गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगी, बल्कि इसका डिसीज़न जो हमारी लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, शहर वाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़, वो डिसीज़न लेगी. तो फिफ्थ डिसीज़न भी जो है वो कौन लेगा? लोकल गवर्नमेंट. बट यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट जो है वो
विलेज वाली लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ पर ये शहर वाली लोकल गवर्नमेंट है। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 1000 रुपी नोट। अब एक नया 1000 रुपी का नोट आना है, तो ये जो डिसीजन लिया जाएगा इंट्रोड्यूस करने का एक न्यू 1000 रुपी नोट, दैट विल बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये पूरी की पूरी कंट्री के लिए लिया जा रहा है। ओके, सो वी हैव डन दिस एंड नाउ in the next class we will do some extra questions from this chapter. Okay, so this is all for today.